MBA इन ऑपरेशंस एग्जैक्टली होता क्या है, इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ ऑल डिटेल्स अराउंड MBA इन ऑपरेशंस, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ कंपनीज हायरिंग फॉर दिस रोल एंड द काइंड ऑफ salaries being offered, types of roles being offered in this specialization, top colleges for MBA in operations, as well as the skills required for this specialization and who should try this MBA in operations. Operations exactly होता क्या है? Let's take an example of a manufacturing plant and draw the value chain for that. आप start करोगे रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स के इन्वेंटरी प्लानिंग से. यू विल प्लान फॉर द राइट इन्वेंटरी सो दैट द रिस्क ऑफ स्टॉक आउट इज नॉट देयर, एज वेल एज यू डू नॉट होल्ड ऑन टू एक्स्ट्रा इन्वेंटरी विच हैज इट्स ओन कॉस्ट. आफ्टर दैट you will basically procure the raw materials. Raw material procurement में you will do the vendor negotiation, so you get the best price and the best quality of raw materials. After that you will bring the raw material to your facility, which we call inbound logistics. After that comes the manufacturing part. After that comes the quality control part. After that is the packaging, then the storage, and then the outbound logistics, that is sending the goods from your factory to the market. And is complete value chain में the planning part of it, scheduling, quality management, inventory management, ये होता है ऑपरेशन रोल का वर्क. एंड इस कंप्लीट वैल्यू चेन में आप अगर देखोगे, आप किसी एक टीम का पार्ट हो सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन बी पार्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल टीम, यू कैन बी पार्ट ऑफ द रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट टीम, यू कैन बी पार्ट ऑफ द इनबाउंड एंड द आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स टीम. सो एवरीथिंग अराउंड दैट, प्लानिंग कैसे करना है, शेड्यूलिंग कैसे करनी है, डिलीवरी हो या फिर क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है, एवरीथिंग अराउंड दैट टीम इज अंडर योर कंट्रोल. सो दिस वाज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन ऑपरेशंस टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट देयर आर मेनी अदर काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, ओला, ऊबर हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, एवरीथिंग अराउंड प्लानिंग, शेड्यूलिंग द डिलीवरीज एज वेल एज द कंप्लीट लॉजिस्टिक्स अराउंड दीज कंपनीज, वो भी ऑपरेशन रोल के अंडर आती है. एनी ई कॉमर्स कंपनी यू टेक, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उनकी जो प्लानिंग होती है, इट कैन बी अबाउट देयर वेयर हाउस ऑपरेशन, इट कैन ऑल्सो बी अबाउट देयर लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन, विच इज ऑल्सो अ मेजर चंक. सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर ऑपरेशन. मैं वर्क करता था एक कंसल्टिंग फर्म के लिए फॉर अ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी क्लाइंट, एंड देयर बेसिकली माई वर्क विद अराउंड गेस्ट ऑपरेशन. सो वंस द guest comes into your travel site, their transportation till the hotel, their luggage transportation, all the hospitality that happens for the guests in this particular route, everything comes under guest operations. So वो भी एक operations का ही part था, where we had to draw out the different processes, the different types of checklists that should be used for quality control and everything around this particular operation. So now to come to the types of firms that hire for this role, I've slightly covered that in the previous section, but to talk about it in detail, large e-commerce firms like Amazon, Flipkart hire extensively for this role, and it's the nature of their job as well. First they have to place, they might have placed people in their warehouses as well. तो warehouse management एक बहुत important part होता है. Under warehouses it can be about inventory management, that is basically कौन सा product stock out होने वाला है, when to replenish the stock, which seller to put your order against. आप demand भी forecast करते हो कि कौन सा product आप forecast कर रहे हो ज़्यादा बिकने वाला है, depending on the market trends or based on your sites data. So आप वो forecasting भी करते हो, modeling भी करते हो. काफ़ी इंटेलिजेंट रोल होता है ये. यू हैव टू मेक श्योर दैट नन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर स्टॉक्ड आउट, एज वेल एज यू डू नॉट होल्ड अ लॉट ऑफ स्टॉक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो ये हो सकता है इन्वेंटरी प्लानिंग का काम. उसके साथ साथ मे बी यू कैन बी इन्वॉल्व इन मे बी स्टोरेज, पैकेजिंग में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो. उसके साथ साथ आप आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हो, एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि वेयर हाउस में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप कैसे एफिशिएंटली प्रोडक्ट को मूव कर सकते हो, एंड नॉट ओनली पॉइंट ए टू पॉइंट बी से फिर आपको अगर लोड करना है ट्रक्स, सो व्हाट्स द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे टू डू दैट. आप ट्रक्स में अगर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कर रहे हो, व्हाट्स द बेस्ट वे टू लोड दैट पर्टिकुलर ट्रक सो दैट आपका कॉस्ट सेव हो जाए. ऑल ऑफ दिस यू विल फिट इन मॉडल. आप अपने खुद के मॉडल्स भी बनाओगे, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट रोल. ऐसा नहीं है कि आप बस फैक्ट्री में खड़े होकर पॉइंट ए से पॉइंट बी आप प्रोडक्ट को देख रहे हो तो जा रहा है, बट यू हैव टू मेक दोज प्रोसेस मोर एफिशिएंट. यू हैव टू डिजाइन योर ओन मॉडल्स दैट विल मेक द प्रोसेस मोर एफिशिएंट. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गया, एनी FMCG और पैकेजिंग प्लांट्स भी हो गया, लाइक HUL हो गया, PNG हो गया, उसके साथ साथ एशियन पेंट्स, दीज काइंड ऑफ फर्म्स जो होता है, वहाँ पर भी ऑपरेशन रोल रिक्वायर्ड है. B2B मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी हो सकते हैं, लाइक स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहाँ पर भी ऑपरेशन रोल रिक्वायर्ड है. ऑब्वियसली द काइंड ऑफ सैलरी दैट यू विल गेट इन से एन FMCG फर्म फॉर एन ऑपरेशन रोल, दैट विल बी मोर, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत जल्दी प्रोडक्ट्स शिप आउट किए जा रहे हैं. सो यू नीड टू बी मोर एक्टिव कंपेयर टू अ B2B फर्म और अ स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. सो डेफिनेटली सैलरी वहाँ पर ज़्यादा होती है, एंड द काइंड ऑफ रोल्स दैट इज offered to IIMs is basically from the FMCG firms itself. कोई भी टॉप कॉलेजेस से आपको FMCG ऑपरेशंस रोल में मिलेगा if you are going for a manufacturing plant. एंड वहाँ पर आपका वर्क कैसा हो सकता है?
सो जैसे मैंने पहले भी बताया था, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री प्लानिंग, ये सब पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भी। रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एफएमसीजी फर्म के लिए, बिकॉज रॉ मटेरियल का कॉस्ट विल फाइनली कैस्केड डाउन टू द फिनिश्ड गुड्स एंड ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट मार्जिन अफेक्ट हो सकते हैं। सो यू नीड वेरी इंटेलिजेंट पीपल देयर एज वेल हु कैन डू द राइट वेंडर नेगोशिएशंस, एज वेल एज आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्राइसिंग मॉडल्स बनाने होते हैं फॉर रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, हु कैन प्रेडिक्ट द राइट प्राइसिंग एट विच पॉइंट क्या प्राइसिंग रहेगी किस रॉ मटेरियल की, बेस्ड ऑन सीजनैलिटी, बेस्ड ऑन द डिमांड, बेस्ड ऑन वेदर एंड एवरीथिंग। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्राइसिंग मॉडल्स भी बनाए जाते हैं। इवन मान लो आप केचप मैन्युफैक्चर करने वाले हो, तो आपको टोमेटो के क्या प्राइजेस रहेंगे, किस सीजन में क्या रहेंगे, आप अकॉर्डिंगली स्टॉक करोगे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड उसके लिए भी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड प्राइसिंग मॉडल्स बनाए जाते हैं। जितना अच्छा प्राइसिंग मॉडल आप फोरकास्ट कर सकते हो, उतना ज़्यादा आप कॉस्ट सेव कर पाओगे अपनी कंपनीज के लिए। उसके बाद यू कैन बी हायर्ड इन कंसल्टिंग फर्म्स एज वेल। काफ़ी सारे कंसल्टिंग फर्म्स होते हैं जो स्पेशलाइज करते हैं ऑपरेशन में। फॉर एग्जाम्पल GEP इज अ कंसल्टिंग फर्म दैट हैज़ नीश इन ऑपरेशंस। बेसिकली उसके पास ज़्यादा ऑपरेशंस प्रोजेक्ट आते हैं, सो ऑब्वियसली नीड्स पीपल हु हैव डन MBA इन ऑपरेशन, दे विल डेफिनेटली बी प्रेफर्ड। एंड उसके साथ साथ GEP इज लाइक वन टिपिकल फर्म स्पेशलाइजेज इन दिस नीश। उसके साथ साथ जो बाकी कंसल्टिंग फर्म्स हैं इन जनरल, मैकेंसी, बेन, BCG, एक्सेंचर हो गया, दे ऑल्सो ऑपरेट इन ऑपरेशन, दे ऑल्सो गेट ऑपरेशंस प्रोजेक्ट, सो ऑब्वियसली दे ऑल्सो नीड सर्टेन काइंड ऑफ पीपल हु हैव डन देयर MBA इन दिस काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसके बाद लॉजिस्टिक्स कंपनी हो गई विच ऑल्सो हायर एक्सटेंसिवली फॉर ऑपरेशंस। कंज्यूमर लॉजिस्टिक्स भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल उबर, ओला जो कंज्यूमर्स डायरेक्टली डील करती है, दे ऑल्सो नीड ऑपरेशंस मैनेजर, वहाँ भी बहुत हाई सैलरी ऑफर की जाती है। उसके बाद B2B लॉजिस्टिक्स भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल शिप की लॉजिस्टिक्स हो सकती है, एयरवेज की लॉजिस्टिक्स हो सकती है। उसके साथ साथ डिलीवरी जैसे होते हैं, काफ़ी बिजनेसेस के लिए डिलीवर करते हैं वो प्रोडक्ट, दे ऑल्सो नीड पीपल फ्रॉम ऑपरेशंस। फॉर एग्जाम्पल DHL हो गया, FedEx हो गया, दीज काइंड ऑफ कंपनीज ऑल्सो नीड, जो बेसिकली बिजनेसेस के लिए भी केटर करते हैं, लॉजिस्टिक्स मैनेज करते हैं, दे ऑल्सो नीड पीपल फ्रॉम ऑपरेशंस बैकग्राउंड। सो नाउ विल मूव टू द टॉप कॉलेजेस फॉर MBA in operations, but before we move there, let me tell you, if you want to pursue your MBA in operations or any other specialization, especially in online mode, then let me tell you about a website that will help you find the right college that are government approved, and that is College Vidya. And also there's a great news because a new feature has been launched on College Vidya website, that is the CV subsidy, where basically if you take admission in any college through College Vidya, you will get a subsidy of 10,000 rupees once you take the admission. And now let's explore the website. So if you go to this website, there are various UG, PG and other online courses here. You can select the course that you want, fill up some basic details, then answer a few basic questions. The AI model will then accordingly list the suitable online universities or education providers for you. All the online universities listed here are government approved, and you get two options here. If you want, you can directly talk to actual university officials, or you can also connect with College Vidya experts for free audio video career counseling as well, and these counselors will stay connected with you from the start of admission till your placement. And here you also get the add to compare feature, where you can easily compare the universities you like based on 30 plus important factors like fees, approvals, placements, student rating, EMI facility, etc. And another good benefit with College Vidya is, for fees they will provide you EMI options even if the university is not providing it. And the best part is they can also redirect you to the actual university website so that you can be saved from potential scams. Further, they also provide you placement support services and online career booster programs which are worth rupees 6,999, but they are offering it for free at this point of time. I will put the link in the description, you can check it out from there. And then you can also join their huge CV community for networking. College Vidya also has jobs and internship portals which is accessible to the students from day one of admission. Through this portal, you can directly apply to thousands of jobs and paid internships. So in short, it's like a one-stop solution for you. I've put the link to their website in the description as well as in my pinned comment. You can check it out from there. Now coming to the top colleges for MBA in operations, देखो मैं अगर top IIMs की बात करूँ, then definitely आप वो consider कर सकते हो because they do not specialize in operations, but still lot of good recruiters come to the campus because of the reputation. IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Lucknow, FMS, XLRI, these kind of colleges obviously can be your choice. But apart from that, let me talk about certain colleges which specialize in operations and maybe इनका ranking उन top colleges से कम हो,
but if it comes to operation, they are definitely at par. And first of all, the college will be IIM Mumbai. NITI it was known as previously, but that is one of the colleges which you can consider the best in operations in India. उनका curriculum भी वैसे ही designed है, उनके faculty भी वैसे ही designed है. Most of the good faculty in operations is there in with IIM Mumbai. जो firms आते हैं that is also concentrated towards operations, so वो एक definitely बहुत अच्छा college है. Apart from there, आप कोई भी IIT का बात करो, वहाँ specifically engineers को hire किया जाता है, so कोई भी IIT operations role के लिए definitely बहुत suitable रहेगी. IIT बॉम्बे definitely lead करती है, SJM SOM जिसको बुलाते हैं हम, शैलेश जे मेहता, तो वो IIT बॉम्बे इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड कॉलेज. IIT खड़गपुर बहुत अच्छा कॉलेज है, IIT दिल्ली बहुत अच्छा कॉलेज है, एंड आफ्टर दैट देयर आर सम अदर IITs एज वेल, IIT रुड़की, IIT मद्रास, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज SPJIMR एज वेल, उनका भी ऑपरेशंस रोल, ऑपरेशंस में आप वो भी स्पेशलाइजेशन करवाते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो रियली गुड. अब बात करते हैं सैलरी की. एंड इन टर्म्स ऑफ सैलरी, जैसे मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा एक्सटेंसिव रोल रहेगा उतनी ज़्यादा सैलरी रहेगी. तो ऑब्वियसली एक ई-कॉमर्स फर्म में, फॉर एग्जांपल अमेजॉन में, फ्लिपकार्ट में, एक ऑपरेशंस रोल में सैलरी डेफिनेटली काफ़ी हाई रहती है. फॉर एग्जांपल अमेजॉन का अगर आप पैकेज का बात करो, इट गोज अप लाइक 40-45 लाख चला जाता है, बट इसमें एक सिग्निफिकेंट ESOP कंपोनेंट रहता है. अगर आप फिक्स पैकेज की बात करो तो इट्स अराउंड 20-25 लाख तक जाता है. अगर आप IIMs की बात करो, इफ़ यू आर गोइंग देयर फ्रॉम IIMs, तो 20-25 लाख जैसा फिक्स पैकेज रहेगा, कुछ वेरिएबल रहेगा, बट एक सिग्निफिकेंट पार्ट ESOP कंपोनेंट भी रहेगा. अराउंड 10-15 लाख ESOP कंपोनेंट हो सकता है, विच विल बी वेस्टेड इन 4 years. सो वो एक कंपोनेंट रहता है. उसके बाद ऊबर, ओला जैसे कंपनीज है, वहाँ पर भी ऑपरेशंस मैनेजर को बहुत हाई सैलरी दी जाती है. अगेन दैट ऑल्सो रीचेज काइंड ऑफ 35-40 की CTC, बट वहाँ पर भी ESOP कंपोनेंट रहता है. तो अगेन फिक्स कम्स डाउन टू लाइक 20-25. उसके बाद FMCG फर्म्स में अगर आप बात करो, वहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, या फिर आप अगर ऑपरेशंस रोल में हो, वहाँ पर भी अच्छी सैलरी होती है. FMCG फर्म्स में जो फ्लैगशिप रोल होता है वो डेफिनेटली मार्केटिंग होता है. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक FMCG फर्म में अगर मार्केटिंग की CTC है 30, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑपरेशंस रोल के लिए CTC स्टार्टिंग में रहेगी 25-26. बट अगेन वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है ऑपरेशंस रोल में, डिपेंडिंग ऑन योर इंपॉर्टेंस इन द कंपनी. सो वाइल इट इज़ नॉट सो सच अ फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर FMCG कंपनी ऑपरेशंस रोल जो होता है, बट सैलरी काइंड ऑफ आपको इक्विवेलेंट मिल जाती है कंपेयर टू मार्केटिंग रोल्स एज वेल. एंड वहाँ पर अगेन वहाँ पर ESOP कंपोनेंट थोड़ा कम होता है कंपेयर टू द ई-कॉमर्स फर्म्स और द स्टार्टअप्स एज वेल. सो वहाँ पर आप 25-26 की CTC में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी जो फिक्स सैलरी रहेगी वो 21-22 तो डेफिनेटली हो जाएगी. बट ये सैलरी मैं टॉप IIMs की बात कर रहा था. अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको किसी B2B फर्म में है, मान लो आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हो, वहाँ आपकी सैलरी हो सकती है 15-20 लाख हो. एंड यूजली दोज काइंड ऑफ रोल्स डू नॉट कम फॉर IIMs, टॉप IIMs में नहीं आते हैं. Tier 2 Tier 3 B स्कूल से डेफिनेटली हायर करते हैं. एंड कुछ फर्म्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल B2B लॉजिस्टिक्स में हो, DHL, FedEx, वो भी हायर करते हैं. 10-15 लाख आपकी सैलरी हो सकती है. सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10-20 लाख के रेंज में आपकी सैलरी होगी, इवन इन दोज कंपनीज विच आर नॉट लाइक कंज्यूमर फेसिंग B2B कंपनीज अगर हो, एंड दे ऑल्सो हायर फ्रॉम Tier 2 and Tier 3 institutes. Now coming to the skills and the type of people who should do this kind of specialization and enter operations. First of all, आपका नंबर क्रंचिंग अच्छा होना चाहिए. मैंने पहले भी बताया था when we were discussing about the roles कि आपको बहुत सारी फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, डिमांड फोरकास्टिंग, प्राइस फोरकास्टिंग. आप बहुत लार्ज सेट्स ऑफ डेटा एनालाइज करोगे इस पर्टिकुलर रोल में. मे बी मोर देन कंसल्टिंग एंड मार्केटिंग एज वेल, मे बी मोर देन फाइनेंस एज वेल इफ यू टॉक अबाउट जनरल डेटा सेट्स. तो आप बहुत ज़्यादा डेटा सेट एनालाइज करोगे. यू हैव टू फिगर आउट कि कब कौन सा डेटा, कौन सा स्टॉक आउट होने वाला है. यू हैव टू बी वेरी वेरी हैंडी विद डेटा एंड नंबर्स. सो नंबर इज डेफिनेटली वन स्किल यू शुड डेफिनेटली हैव. अगर आपके पास वो स्किल नहीं है देन प्रॉब्ली आप ऑपरेशंस एंजॉय नहीं करोगे. नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर मैनेजमेंट. इफ यू आर वर्किंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और अ वेयरहाउस ऑपरेशंस, देन आपको काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पड़ेंगे ऑन द शॉप फ्लोर फॉर योर वर्कर्स विच माइट नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वर्क एज वेल. एंड वो रेगुलरली कोई ना कोई प्रॉब्लम आता ही रहेगा इन योर वेयरहाउस. एंड फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो who wants to concentrate just on your data, on your presentation, you might find it a little bit difficult to get things moving in your warehouse or your manufacturing plant operations. So stakeholder management becomes an important
important component. Next is statistics, and as I have told, you will be doing a lot of modeling, so statistics is important. And at the same time, आप जब MBA pursue करोगे in operations, you will be encountering a lot of scheduling problems, network problems, and अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, probably you will be doing the same kind of job on your particular profile in your particular company as well. So हो सकता है आपको ये role पसंद नहीं आए. So ये थे कुछ skills. And अगर मैं CV की बात करूँ, usually engineers, yes, I would not deny that engineers are slightly preferred in this kind of role, especially because उनका quant थोड़ा strong होता है. And as I've told, आप इतनी modeling करोगे, इतना data sets analyze करोगे, so quant is definitely a skill that is preferred in operations. At the same time, because stakeholder management important है, negotiation important है, तो people are preferred who have certain degree of work experience in this kind of role. अगर आपके पास 1-2 साल का work experience है, तो probably you will be preferred for operations role. Usually एक fresher के लिए बहुत difficult हो जाता है manage करना workers को, especially if they are hired for warehouse operations, manufacturing plant operations. So usually people with 1 or 2 years of work experience will be preferred. And academics can be important, but it is not as important in operations role compared to say consulting or finance. यहाँ पर positions of responsibility and your work experience section जो होता है ना resume में, वो ज़्यादा important होता है. So make sure you concentrate on those particular sections if you are applying for any kind of operations role. So this was complete details about MBA in operations. अगर आपको अभी भी कोई doubt है, आप comment section में you can put it down there. I'll be happy to address it. And also let me know which other specialization I should cover next, because I've already covered a lot of specializations, MBA in HR, MBA in analytics, MBA in marketing. अगर आप वो videos देखना चाहते हो, then मैं आपको वो screen पे दिखा दूंगा. If you are interested, मैं आपसे वहाँ मिलता हूँ.